جی السلام علیکم۔ جبکہ پورے ریجن میں آگ لگی ہوئی ہے اور جنگیں جاری ہیں، دو امپورٹنٹ پہلو ہیں جو ہمارے سے لوکل اور پاکستان سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو اس ویلاگ میں ڈسکس کرنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ آپ دیکھیے کہ آؤٹ آف نو ویئر جو ہمارے چینلز ہیں ان کو ہیک کیا گیا ہے، یعنی سائبر اٹیک کیا گیا، اور کہا جا رہا ہے کہ اسرائیلی جو ہے اس کے اٹیکس ہیں، ہیکرز نے کیے۔ اور سیکنڈلی جب سے یہ امام علی خامنائی کی شہادت کی خبر یہاں ملی، تو یہاں پہ بھی وائلنٹ قسم کے جو ہے پروٹیسٹ ایرپٹ کیے ہیں، خاص طور پہ کراچی میں۔ تو لاہور میں تو انہوں نے کنٹرول رکھا اور ان سے بات چیت کر لی، کراچی میں ذرا وائلنٹ ہو گئے، جس کے اوپر ریٹیلیٹ بھی کرنا پڑا لا انفورسمنٹ فورسز کو۔ تو میں اس سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ان دونوں جو چیزیں ہیں اس کے اوپر اگر آپ لطف صاحب اس پہ روشنی ڈال سکیں۔ نمبر ون تو یہ جو ہیک کرنے کا کیا وجہ ہوئی اور کیوں پاکستان کو کیا گیا، اور وائی اسرائیلیز، اور کیسے کیے انہوں نے؟ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم، اور بہت شکریہ، آپ نے بڑے امپورٹنٹ معاملات کی طرف نشاندہی کی ہے۔ پہلی چیز تو یہ کہ جو سائبر اٹیکس ہیں یہ دے آر بیسیکلی آپ کے ٹی وی چینلز کو کے اوپر جب ہوا ہے تو آپ کو نظر آیا ہے، مطلب پوری دنیا کو، پورے پاکستان کو یہ محسوس ہوا ہے، مگر سائبر اٹیکس بڑے عرصے سے جاری ہیں، اور یہ ففتھ جنریشن وارفیئر کا ایک حصہ ہے جو بذات خود ہائبرڈ وارفیئر کا ایک حصہ ہے۔ اس میں تمام وہ تنصیبات سول اور ملٹری کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے جس سے عوام میں بے چینی پیدا ہو اور اس سے حکومت کے خلاف جذبات بھڑکنے کا امکان ہو۔ اسی مد کے اندر آپ یہ دیکھیے کہ ان کی ٹائمنگز اور اس کے جو عمل ہے وہ بڑا خصوصی اہمیت کا حامل ہے، چونکہ ایک طرف آپ کی افغانستان کے ساتھ ایک کنفلکٹ سچویشن ہے، دوسری طرف اسرائیل کے اور ایران کی لڑائی جاری ہے، جس میں پاکستان کے پاکستان کے اوپر بھی اس کا اثر لازمی اور لازمی پڑ رہا ہے۔ ابھی اس میں یہ جو ٹائمنگز وغیرہ کو سامنے رکھتے ہوئے آپ دیکھیں گے، اور تھوڑا اگر پچھلے اس میں نظر ڈالیں گے، تو آپ کو 2010 میں ایک اسرائیل نے ایک لانچ کیا تھا سٹوکس نیٹ کے نام کا ایک وائرس، جو کہ ایٹمی تنصیبات کو جس نے ہٹ کیا تھا، اور اس میں ایک مخصوص ملک کے کمپیوٹرز جو کہ پاکستان میں بھی اور کئی ملکوں میں استعمال ہو رہے تھے نیوکلیئر ٹیکنالوجیز کے اندر، ٹھیک ان کو اس نے انفیکٹ کیا تھا اور اس کو سٹرائک کیا تھا۔ ٹھیک اس کے ساتھ پھر وہاں پہ ایران میں کئی ایسے انہوں نے حملے کیے جو کہ ان کی کامرس کے اوپر تھے، تیل پہ کے ٹرمینلز کے اوپر ان کے ہوئے، ان کے میونسپل سسٹمز، واٹر سپلائی سسٹمز، اور ان تمام چیزوں کے اوپر اٹیک کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ ایران نے بھی جوابی کارروائی کی۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان نے بھی کافی کوششیں کی ہیں اس قسم کے اٹیکس کرنے کی، اور ٹھیک یہ تمام بہت سارے مختلف ایریاز کے اندر اٹیکس جو ہیں، ہماری ولنریبلٹیز ہوتی ہیں، سب ملکوں کی ہیں۔ اس میں سول انفراسٹرکچرز ہیں، فائنینشیل سیکٹر ہے، انرجی سیکٹر ہے، کمرشل سیکٹر ہے، اور دوسرے وہ کوئی ولنریبل سیکٹر جیسے نیوکلیئر، ڈیفنس، ہیلتھ وغیرہ ہیں۔ جہاں جہاں پہ کمپیوٹر انٹرنیٹ کی پہنچ ہے وہ اسے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ ٹھیک ہے۔ اوکے، یہ والا جو اٹیک کیا گیا یہ بڑا وہ سوچ سمجھ کے کیا گیا، اور اس کے لیے صرف یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے رہیں، ہمیں بڑی ضرورت ہے۔ تھوڑا سا میں آپ کو اس سے میں یہ بتاتا چلوں کہ اسرائیل نے، اس کی ایک یونٹ ہے، یونٹ 8200، ایک یونٹ 81 ہے، ایک C41 کارپس سائبر ڈویژن ہے، پھر نیشنل سائبر ڈائریکٹریٹ ہے۔ یہ انتہائی جدید اور باقی ملکوں کے ساتھ تعاون کر کے انہوں نے اپنی طریقہ کار بنایا ہوا ہے۔ اسی طرح انڈیا نے اپنا بہت بڑا ایک انفراسٹرکچر بنایا ہوا ہے جو کہ سائبر وارفیئر کے ساتھ ہے، اور ابھی آپ جب اکثر یہ والا لفظ سنتے ہوں گے کہ ففتھ جنریشن وارفیئر میں، اور یہ سوشل میڈیا کے اوپر ایکٹیوسٹ ہیں، وہ بھی اس کا ایک جز بن جاتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ انتہائی مہلک اور جدید ففتھ ڈائمنشن جو ہے وارفیئر کی، اس کی بہت بڑا ایک اہم جز ہے یہ۔ ٹھیک ہے تو اور یہ مزید اس کے اندر پھیلاؤ آ رہا ہے سیٹلائٹ ٹیلیفونز کے ساتھ، سٹار لنکس کے ساتھ، اور جو کانسیپٹ آیا ہے C5 اور یا C6 ISR کا،
उसके साथ फिर इसराइल इस्तेमाल कर रहा है औरॉन एयरक्राफ्ट, जो कि फिटेड है, जो एक मॉडिफाइड गल्फ स्ट्रीम G550 है। और वो वन 122 नाक्सन नाक्शन स्क्वाड्रन के उसको ऑपरेट कर रही है, जो कि आपके इसमें मुंसलिक उसने किया हुआ है अपने तमाम जो नेटवर्क्स हैं आपके ड्रोन्स के ज़रिए। तो वो उसके ज़रिए ऑपरेट कर रहा है, और यही हमें बाकी इस मज़ीद जब हम इसमें ज़रा ये गौर लेकिन करेंगे इन तो चीज़ों हमें से इसकी उसने, कनेक्शंस पता लगेगा, मज़ीद जो लेटेस्ट असैसिनेशंस वगैरह हुए हैं। ये जो मैं जी। हमने देखा कि जियो को या ARY को इन्होंने हैक किया, जो हमारे मेन न्यूज़ चैनल्स हैं, प्राइवेट हैं लेकिन मेन न्यूज़ चैनल्स हैं, तो उससे उन्होंने क्या, इससे हदफ क्या उन्होंने है, क्या बताना चाह रहे हैं कि वी कैन यू नो सेबोटाज योर सिस्टम, या कोई आप जैसे कह रहे हैं कि यहाँ पे वो बदअमनी फैलाना चाहते हैं, मकसद क्या था उसका? एक एक सबसे बड़ा मकसद ये था कि वो आपके मुल्क में लोगों में तशवीश ऐसे मौके पे, जबकि एक बहुत बड़े, बल्कि तकरीबन सारे सारे मुल्कों में और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में ये इस चीज़ को बड़ी मजम्मत और बड़ी मुखालफत की जा रही है, जो कि ईरान में इन्होंने अटैक किया और असैसिनेशन किया। तो उस माहौल के अंदर इसको मज़ीद हवा देने के लिए, लोगों में बेचैनी पैदा करने के लिए कि लो जी हूं तो स्ट्राइक हो गया, और अभी ये हो गया, क्योंकि आम लोगों की फहम में ये अब, और इसके ऊपर फेक न्यूज़ भी आ सकती है, कंट्रोल भी इसका वो ले सकते हैं, और आपको जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसको मुअत्तल भी कर सकते जी हैं। ठीक जी। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं और पीछे बैठ के हो रही हैं, सामने नज़र नहीं आ रहा, जी जाहिर है तो वैसे अवाम ही। में इसके लिए बहुत तशवीश पैदा होती है। लेकिन मैंने आवाम को ये भी मालूम होना चाहिए, और बाहर के लोगों को भी जो ये कर रहे हैं, कि इस मामले में पाकिस्तानी हैकर्स दे आर एक्सीलेंट, और हम तो कई चीज़ों के मौजूद हैं जो उनके लिए जब करेंगे तो उनको फिर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए उनको तो इस बात का अदराक होना चाहिए कि पाकिस्तान इस मामले में कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है कि रिस्पॉन्ड कर सके। देखिए ये जो अटैक है, साइबर अटैक है, मेलवेयर अटैक है, या रैंसमवेयर अटैक्स है, ये तो डेवलप्ड कंट्रीज में भी वो कर लेते हैं सक्सेसफुली। तो मेरा ख्याल है कि इतना इसका इतना बड़ा कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान पे नहीं आने लगा, कि अगर वो थोड़ी देर उन्होंने जियो को हैक किया है तो, या ARY को किया है। दूसरी नहीं, ये मैंने, ये इस तरह के हैक्स और अटैक्स जो हैं डॉक्टर साहब, ये तो रोज़मर्रा होते हैं। जी सैकड़ों होते हैं, जी कहीं पे कामयाब होते हैं, कहीं पे डिफेंड होते हैं। उनका मकसद ये नहीं था, उनका मकसद, जो जो दुश्मन है उसका मकसद था कि क्योंकि ये एक ब्रॉडकास्टिंग उसके ऊपर हुआ है, तो सब लोग इसको देख रहे हैं, और सब लोग इसको देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल पैदा हो रही है, तो उस वक्त इंटरप्ट करने से उनके बिल्कुल जहन ठीक। में एक जी, हिजान पैदा होता है। ये जान पैदा और करें। दूसरे ये कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान उलझ जाए, वो भी जवाबी कार्रवाई करे, और शिद्दत से करे, और फिर उसके बाद वो जवाबी कार्रवाई करें, इसको बुनियाद बना के मजीद आगे कशीदगी को और उसको एक काइनेटिक सिचुएशन की तरफ लेके जाएं। जी यही हमें इस सिचुएशन तो, मामले में मुतलक रहना होगा, जी और हमारे लिए बड़ा ज़रूरी है कि हम कुछ कम से कम जो आपकी जो अदारे हैं और वो तमाम इस लोग में, वो एक तो इसके ऊपर कस्टमाइज्ड अरेंजमेंट्स करें, या पब्लिक को साथ मिलाएं, इसको मज़ीद आगे रिविजिट करें, पॉलिसीज़ को डेली बेसिस के ऊपर ज़रूरत पड़े तो उस पर करें, और कानून में तरमीम करें। जी और इससे कबल कि मैं इस सब्जेक्ट को मैं अख्तिताम पजीर करूं, मैं आपको ये याद दिलाता चलूं कि ये जो गुज़िश्ता चेन ऑफ असैसिनेशंस है, जिसके अंदर बड़े हाई प्रोफाइल असैसिनेशंस चंद मैं आपको बता दूं कि ईरान में डॉक्टर फ़खरीज़ादे महाबादी का कत्ल, और उसके बाद फिर प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी का जो क्रैश है, जिसके बारे में भी ये शुबा किया जाता है कि उसमें भी साइबर इन्वॉल्व था। जी और इसके साथ साथ ये जो अभी इस्माइल हानिया का मर्डर था, और फिर मोस्ट रिसेंट ये इमाम ख़मीनी साहब को जो उन्होंने टारगेट किया है, ये तमाम उसके अंदर साइबर के जुजियात शामिल हैं। और वो बड़ी इस वास्ते ये एक अहम जुज है जिसके ऊपर हम इग्नोर नहीं कर सकते, जी जनाब बिल्कुल अली। बिल्कुल। अभी तो ये खबरें आ रही हैं कि इमाम खामेनेई पे जो अटैक है, वो AI जनरेटेड अटैक था, और उसमें जो है क्लॉड, उसको यूज़ किया गया है। अगरचे क्लॉड ने, आपको पता है कि पिछले दिनों पेंटागन को रिफ्यूज़ कर दिया था कि हम अपनी फैसिलिटी आपको यूज़ नहीं करने देंगे, तो उन्होंने चैट GPT के साथ, AI के साथ जो है वो
ओपन एआई के साथ कर लिया था एक माहदा। लेकिन ये अभी खबरें आ रही हैं कि इस्तेमाल क्लॉड को किया गया है। तो ये तो एक नए डायमेंशन और रिस्क है, और उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए। आपने जो बात की कि उसके बाद यहाँ पे इस तरह की हरकत के बाद यहाँ पाकिस्तान में या किसी जगह पे भी बदअमनी फैलाने की एक सही और कोशिश की जाती है। तो पाकिस्तान में ये कोशिश की गई। यूं ही ये खबर आई शहादत की इमाम खामनाई की, तो उसके बाद यहाँ पे एक रिएक्शन मुख्तलिफ शहरों में आया, क्योंकि एक बड़ी तादाद शिया पॉपुलेशन भी है। और लेकिन ये देखने की बात यह है कि कराची में ये वायलेंट हो गया, और जो कॉन्सुलेट्स पे, यूएस कॉन्सुलेट पे हमला किया, जिसके जवाब में फिर रोकना पड़ा और नुकसान, यानी नुकसान भी हुए। जबकि लाहौर में इसको ऐसे तरीके से टैकल कर लिया गया। जीबी में भी, गिलगित बल्तिस्तान में भी ये वायलेंट हुए। तो ये आपके ख्याल में ये सिर्फ एक जो गम और गुस्सा है? देखिए ना, ये क्योंकि इस तरह का जहाँ पे वाकया हुआ है ईरान में, वहाँ पे भी इस तरह के तो वायलेंट प्रोटेस्ट नहीं हुआ। इंडिया में भी कॉन्सुलेट पे गए हैं, लेकिन वायलेंट नारेबाजी हुई, खत्म हो गया। तो ये पाकिस्तान में किसके पीछे क्या मुहर्रकात हैं, कौन से अवामिल हैं, कौन से अनासर हैं जो इनको इस काम पे लगाने की कोशिश कर रहे हैं? डॉक्टर साहब, मैं पहली चीज़ तो ये कि आपने वो फरमाया कि साइबर को यूज़ किया गया इस हमले के अंदर, उसकी उसको मैं तकमील तक पहुंचाऊं। उसमें ये दुरुस्त है कि साइबर जो टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, मेरे एक इंटेलिजेंस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, नुक्ता नज़र से, ये एक असैसिनेशन थी। असैसिनेशन का एक था जिसके अंदर तमाम वामिल और बुरूकार लाए गए। इससे कबल जैसे मैंने महाबंदी अपना उनका आपको मिसाल दी, फखरीजादे महाबंदी साहब की, डॉक्टर साहब की शहादत की, उसके अंदर भी और बाकियों में भी इन्होंने इसको यूज़ किया। और जो वक्त के साथ साथ आईटी जो जायंट्स हैं वो स्टेट एक्टर्स की तरह वो शामिल हो चुके हैं, एक सॉवरन पावर्स की तरह। वो आपकी जो दूसरे मुल्कों की पॉलिसीज़ हैं उसको मैनिपुलेट भी कर रहे हैं और बढ़ावा भी दे रहे हैं। तो वो एक बहुत वसी सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमारी, मुझे यकीन है कि हमारे वो जो हुकूमती वो हैं वो उसको ज़रूर देख रहे होंगे। इसके बाद मैं आपको आता हूँ कि ये जो वाक़या हुआ तशद्दुद का, तो जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये एक सिलसिला है, कड़ी से कड़ी मिलती है। और ये वेल प्लान्ड ऑर्गेनाइज था, असैसिनेशन ऑर्गेनाइज था। उसके बारे में बहुत अच्छी तरह पता था कि उसके साथ जो हिजान की कैफियत पैदा होगी, और पाकिस्तान और इर्द गिर्द के ममालिक के अंदर वहाँ पे जो उनके हिंदुस्तान और इंडो इसराइली और उनके साथ, उनके जो साथ और एलाइज हैं, उनके जो फिफ्थ कॉलमिस्ट हैं या उनके एजेंट्स हैं या स्लीपर सेल्स हैं, और ख़ासूसी तौर पे वो तमाम लोग जो कि अब सीरिया से और बाकी इराक से यहाँ पे धकेल के अफ़गानिस्तान पाकिस्तान में वापस पुश बैक किए गए हैं, वो तमाम लोग जो हैं उनको इस्तेमाल किया जाएगा। अभी आप यूं देखिए कि जिस वक्त ये किया गया तो उसमें ये उस वक्त नेतन्याहू साहब ने और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बाकायदा खिताब किया और अवाम को कॉल दी कि वो उठ खड़े हों ईरान के खिलाफ। मगर उसके अंदर अवाम, जहां नेतन्याहू साहब थे, उन्होंने पाकिस्तान का भी उन्होंने हवाला, पाकिस्तान का नहीं बलूचिस्तान का हवाला दिया कि बलूचिस को उठ खड़े होना चाहिए इस मौके पे। ये उनके ये कहने के सर, मुताबिक उन्होंने ये लेकिन कत्ल ये कर दिया था। और इस पे थोड़ी सी क्लैरिफिकेशन आ रही है कि ये जो है बेसिकली फेक बनाया गया था। उसने, जी नहीं, इन्होंने ये दुनिया इस की तरह की बात नहीं मुस्तनद की। दुनिया की मुस्तनद न्यूज़ लाइन एजेंसीज के ऊपर उनकी तकरीर के अंदर उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। उन्होंने उन्होंने जो कहा, मैं कोट करता हूँ: द टाइम हैज़ कम फॉर ऑल सेगमेंट्स ऑफ द इरानियन पीपल, पर्शियंस, कुर्द्स, अजीरीज, बलोचीज एंड अहवाजीज, टू rid themselves of the yoke of tyranny हम्म, and bring about a free and peace seeking Iran। ठीक है, उन्होंने ठीक। ईरान के हवाले से ये जी। बयान जारी किया। मगर ठीक। बलूचिस जो हैं, आपको पता है जी। कि वो दोनों जानिब वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं, जी। और उनको पहले जुंदुल्ला और अब जो जैश उल अदल है उसके थ्रू किया जा रहा है ऑपरेट। और ठीक। दोनों, आपकी बीएलए और जैश उल अदल, एक सिक्के के दो रुख हैं। तो बहरहाल, और उसमें ईरान ने जब, तो ने ईरानी लोगों ने तो रिस्पॉन्ड नहीं किया है इनकी इस जो मज़ाक़ खेज अपील को, ये जी, वो नेतन्याहू उसमें की। वहां पे तो यूनाइट हो गए। जी, बल्कि यहाँ पे यूनाइट हो गए। चूंकि इसके साथ
इसके साथ बैकअप किया गया एक कत्ल का, और एक ऐसा हिजान अंगेज कत्ल जिसने तमाम लोगों के जज्बात मजरू किए। और पाकिस्तान में ऑलरेडी कई जो सेक्टेरियन टेंशन्स हैं वो बड़ी मुश्किल से, एक बड़े बारीक, बड़े मुश्किल से बैलेंस हुए हुए हैं, और उनको डिस्टर्ब किया गया। और आप ये देखिए कि जो मुजाहरे और शिद्दत ज़्यादा जहाँ पे हुई, वो तमाम वो इलाके हैं जो कि पहले भी सेक्टेरियन तशद्दुद के गहवारे रहे। और इसमें अभी आपको तवज्जो मैं दिलाता चलूँ कि पिछले ही दिनों पाकिस्तान ने कुछ तंजीमों को प्रोस्क्राइब किया था, जिसमें वो तंजीमें भी शामिल थीं जो एक फिक्र से मुंसलिक सीरिया में और इराक में लड़ाई में शामिल थीं। वो लोग अब वापस आ चुके हैं, और उनकी वापसी जो हुई है वो ना सिर्फ उनको भेजने वालों की, बल्कि उनको वापस भिजवाने वालों के उनके ऊपर दस्त शफकत है, जिनकी आवाज़ पे, लब्बैक पे उन लोगों ने और उनके साथ बाकी लोगों ने ये तशद्दुद शुरू किया, ताकि मासूम लोग उसके अंदर मारे जाएं और एक फिसाद की कैफियत पैदा हो, ताकि मुल्क में अफरा तफरी पैदा हो। ख़ास तौर पे जबकि यहाँ पे बहुत सारे अभी ऐसे अनासर स्लीपिंग सेल, स्लीपर सेल्स मैं कहूँगा उनको, जो कि अफ़गानिस्तान के और उसके थ्रू वसातत से प्रॉक्सीज हैं, और उसके अलावा इसराइल की प्रॉक्सीज जहाँ पे हैं, जो इन्हें स्लीपर सेल्स कहना एक कॉमन नाउन के तौर पे कहना मुनासिब होगा, उनको एक्टिवेट किया गया है ताकि वो जाके जलसा जुलूस के अंदर एक पुरअमन जलसे जुलूस को पुरतशद्दुद बनाएं। फायरिंग करते जैसे ही नजर आए अवाम हैं। के ऊपर फायर होगा तो जी। उसको मजीद बनाने के लिए आप उसको बढ़ाएंगे। जी। इसके बारे में मैं तजवीज़, मेरी तरफ से तो यही गुजारिश होगी कि हुकूमत फौरी तौर पे एक वाजे और एक जो फेडरल लेवल के ऊपर एक इसकी वो इंक्वायरी जो है, जुडिशल इंक्वायरी, और खोज कमीशन में करें। उसको बिठाए जो कि चंद दिनों के अंदर इसके बारे में तहकीक करे। और इन द मीन टाइम तमाम जितने फ़िक़्ह जाफरिया के जितने उनके वो लीडर्स हैं, उन तमाम के साथ बातचीत करे और उनको एतमाद में लेकर, और इस चीज़ को वाकई कोशिश दूर करे कि ये तशद्दुद जो है ये तो नहीं होना चाहिए। जी। प्रोटेस्ट का हक हर किसी को हासिल है। ठीक। जी। जनाब, बिल्कुल ठीक कहा आपने, और मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा सा एंटिसिपेट भी करना चाहिए था हमें। वहां पे आप देखिए उसके बारे कि में मुझे यकीनन यकीनन हमें भी ये पता होना चाहिए था, मगर गालिबन मुझे, मैं इसको शक की इसको फ़ायदा देते हुए मैं ये कहूँगा कि चूंकि ऑलरेडी हम अफ़गानिस्तान के साथ और उनके जो कोवर्ट उसके हैं उसके बारे में हम काफ़ी होशियार हैं, और पीछे रमज़ान की वजह से भी आईएसआईएस की जानिब से भी जो आईएसकेपी की जानिब से खदशात की मद्देनज़र हम काफ़ी हद तक चाक चौबंद रहे। तो जी। गालिबन ये वाली चीज़ जो है ये हमारे ऊपर अचानक अनफोल्ड की गई। जी। मगर आपकी एक बात की मैं तायीद करता हूँ कि हमें इन चीज़ों के लिए हमेशा प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। एक तो ये एंगल है कि आप लॉ एंड ऑर्डर और फिर इंटेलिजेंस का इस्तेमाल इस पे होना चाहिए था टाइमली। दूसरा जो गवर्नेंस का पैटर्न है, मैं दोनों जगह देख रहा था कि इस्लामाबाद में और पंजाब में, दोनों जगह डायरेक्टली जो पॉलिटिकल फिगर्स थे उन्होंने लोगों के साथ जाके इंटरेक्ट करके उनको समझाने बुझाने की और उनकी तसल्ली तशफ़ी करने की कोशिश की, और वो कामयाब रहे। इस्लामाबाद में इंटीरियर मिनिस्टर खुद गए, उन्होंने हॉस्टाइल उनकी जो है गुफ्तगू सुनी भी, लेकिन जाहिर है कि वायलेंस नहीं हुआ। पंजाब में भी ऐसे ही इख्तियार किया गया कि उन्होंने बयान दिया कि हम साथ शामिल हैं आपके गम गुस्से और दर्द में, लेकिन और हम आपको बैठे और प्रोटेस्ट करें, आपको अफ्तारी भी दिए जाए, इनका ख्याल किया जाए, लेकिन वायलेंस नहीं किया जाएगा। तो वो यहाँ पे भी उन्होंने इस बात पे लब्बैक कह लिया। तो मैं समझता हूँ कि एक ही मल्टी प्रॉन्ग्ड एक स्ट्रेटेजी शुड हैव बीन इन प्लेस, जिस तरह यहाँ पे की गई है। दिस इज अ गुड केस स्टडी कि इंटेलिजेंस से प्रिएम्प्टिव से लेके इसको गवर्नेंस के एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल तक अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया जाए, तो ये चीज़ें बेहतर हो सकती थी। वो आपकी बात बिल्कुल, सजेशन ठीक है कि इसके ऊपर प्रोब होनी चाहिए, ताकि मालूम हो आइंदा के लिए कि किस किस्म के अनासर बीच में शामिल होके यहाँ पे वायलेंस या तशद्दुद की हवा देने की कोशिश करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। डॉक्टर साहब, मैं आपकी बात की तायीद करते हुए मैं एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि हमें अपनी खुद फरेबी से निकल के हमें इस बात के अंदर यकीनी तौर पे
हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हम एक बाकायदा जंग के अंदर इस वक्त बुरी तरह फंसे हुए हैं। और हमें तमाम वो जो सिविल या पीस टाइम की जो चीज़ें हैं उन चीज़ों को हमें पीछे रख के हमें जंगी माहौल के मुताबिक, हालात के मुताबिक फौरी तौर पे अपने आप को उसके मुताबिक चेंज करना पड़ेगा। तब्दीलियाँ लानी पड़ेंगी, अपग्रेड करनी पड़ेंगी चीज़ें। और तमाम हमें वो चीज़ें एक्टिवेट करनी पड़ेंगी, सिविल डिफेंस से लेके वो जो हमारी सेक्टेरियन हार्मनी के लिए जो हमने मैकेनिज्म्स किए हुए हैं, लॉ एंड इन्फोर्समेंट के किए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें ह्यूमन इंटेलिजेंस के ऊपर जो है उसके ऊपर ज़्यादा और ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि जंग की सूरत हाल में जो कार इंटेलिजेंस के जराए होते हैं वो जो कम हैं और मज़ीद उनको तकवीत देनी पड़ती है। ठीक। शुक्रिया। राइट सर, आप जनाब। बहुत शुक्रिया सर। अल्लाह हाफिज।